Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about the advent of Iron Age. It was started 1200 BC. So, बच्चे, the discovery of iron led to the manufacturing of stronger tools like sickle, shovel, spades, axe, and nails, etc. Okay. Also, we read about the different Iron Age civilizations. Okay, such as Greek civilization, Roman civilization, and Iranian civilization. And we also did a comparative study of Greek, Roman, and Iranian civilizations. Now, children, let us study about another important Iron Age civilization that existed in India. And you people will understand what I am talking about. I am talking about the Vedic civilization. Okay. So, children, the word Veda or Rig means knowledge. The knowledge contained in Vedas is for the whole mankind. The knowledge is not only for one person, it is for whole mankind. So, because of this term Veda, this period of Indian history is called the Vedic period. Okay, as Vedas are the main source of information about this periods. So, this is the very reason why this period is known as Vedic period, because of the term Veda. Because Vedas were written in this period. Vedas इस period में लिखे गए थे. That's the reason this period is known as the Vedic period. Okay. So, children, there are four main Vedas: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. Okay. Also, the Vedic period can also be divided into early Vedic period and later Vedic period. Okay, the early Vedic period is also referred as the Rig Vedic period. Children, when Rig Veda was written, जब Rig Veda लिखा गया था, then this period was known as early Vedic period. Okay. As the Rig Veda provides us information about this period. जो early Vedic period है बच्चे, उसके बारे में total information हमें कहाँ से मिलती है? From Rig Veda. Okay. ऋग वेदा ही ओनली सोर्स था उस टाइम जो हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड Brahmanas is also the sacred Vedic period text. Okay. It also gives us information about the Vedic period. Then Arayankas and Upanishads also provide information about the later Vedic period, which is also known as the epic age. Epic होते हैं ग्रंथ. Okay, जब बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए थे, ये सारे epics लिखे गए थे. That's what this later Vedic period is known as an epic age. Okay. Then, what's the meaning of Upanishads, bete? Sitting near your guru and take some knowledge. So, the meaning of Upanishad is that. Okay. To take knowledge from your teacher by sitting near him. Okay. उसके नज़दीक बैठ के कुछ gain करना. Okay. And जो आर्यनक्स वर्ड मैंने यूज़ किया था, आर्यनक ग्रंथ लिखे गए थे बेटे, एपिक होते हैं ये भी. इनका मीनिंग होता है फॉरेस्ट, और जो एकांत में लिखे गए हों. ठीक है, अलोन होके लिखे गए हों, कहीं अलोन प्लेस पे लिखे गए हों. सो डू यू नो में क्या है बच्चे? ऋग्वेदा, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा. देन बच्चे देयर कम्स, डू यू नो Rigveda is the oldest Veda, composed about 3500 years ago. This includes more than 1000 hymns. Hymns क्या होते हैं बच्चे? मंत्र. Okay, known as सूक्त. उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ता इंग्लिश में एंड हिंदी में सूक्त. Which means well said, कि बहुत अच्छी sayings जो होती हैं. ठीक है, well said. Those who composed hymns called themselves Aryans. जिन्होंने भी ये हिम्स कंपोज किए थे वो अपने को क्या कहते थे बच्चे? आर्यंस. ओके. एंड देयर ओपोनेंट्स एज दस्युस और दासास. और उनके जो ओपोनेंट्स थे जिनके साथ उनकी हमेशा कॉन्टिन्यूस फाइट चलती रहती थी, दे वर नोन एज दस्युस एंड दासास. ओके. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन इन वैदिक पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कम्स पॉलिटिकल कंडीशन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ऋग्वेदा मेंशंस राजाज हु वर डिफरेंट फ्रॉम द
लेटर वैदिक किंग्स, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो किंग्स थे, राजा थे, वो लेटर वैदिक पीरियड के किंग से डिफरेंट थे बच्चे। दे नीदर हैड कैपिटल्स, पहले कोई जो कैपिटल्स नहीं थी उनकी, ठीक है, सिटीज़ नहीं हुआ करती थी उन दिनों, पैलेसेस नहीं थे, आर्मीज़ नहीं थी, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर वाज ओवर देयर, ठीक है। नॉट दे कलेक्टेड टैक्सेस, ये टैक्स वैक्स का सिस्टम बाद में शुरू हुआ है, ओके। तो किंगशिप वाज नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस, इट मीन्स दैट कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इट वाज नॉट कंपल्सरी, ओके। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम्स, फिर वहाँ पे छोटे छोटे राज्य बनने लग गए थे, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। वेयर किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, जहाँ पे किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी, कि राजा का बेटा ही जो था वो राजा बनता था, ओके। चिल्ड्रन, द किंग ऑफ अ स्मॉल किंगडम वॉज कॉल्ड ए राजा, छोटी किंगडम के किंग को राजा कहा जाता था। एंड अ सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड अ लार्ज किंगडम, जबकि जो सम्राट और महाराजा था वो एक बड़ी किंगडम को कंट्रोल करता था, और उस किंगडम को क्या कहा जाता था, नोन एज राष्ट्र, जो राष्ट्र वर्ड आज भी नेशन के लिए यूज़ होता है, ओके। द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित प्रीस्ट, किंग को कौन कौन हेल्प करते थे बेटे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, पुरोहित जो कि पुजारी भी होते थे, प्रीस्ट मंत्री, मेन मिनिस्टर, एंड सेनानी commander of all armies, and Gramini. Gramini means headman of the village, okay. The king consulted the Sabha and the Samiti on important matters. तो जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना होता था बच्चे, तो किंग किसको कंसल्ट करता था, सभा और समिति को, ओके। एक मीटिंग बुलाई जाती थी जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को बुलाया जाता था और उनसे कंसल्ट करता था किंग इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर। तो सभा क्या थी बच्चे, सभा वॉज अ स्मॉल body of selected village elders and samiti was a large assembly that was responsible for policy making. तो सभा selected village elders की small body थी, जबकि समिति जो थी वो large assembly थी policy making के लिए। The power of the kings increased in the later Vedic period. They performed Rajsurya and Ashwamedh yajnas. वो राजसूर्य एंड अश्वमेध यज्ञ करते थे बच्चे, ओके। Ashwamedh yajna means horse sacrifice. The Rajsurya Yagya sacrifice was performed by the king to gain supreme power. राजसूर्य यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि उससे सुप्रीम पावर मिल सके, एंड द अश्वमेध यज्ञ वॉज फॉर डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर अ वास्ट टेरिटरी, और अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि उसकी जो सुप्रीमेसी है वो दूर दूर तक वास्ट टेरिटरीज तक फैल जाए, ओके। क्योंकि जो हॉर्स था वो डिफरेंट टेरिटरीज में छोड़ा जाता था और उसे कोई पकड़ता नहीं था, किसी भी टेरिटरी के किंग उसे पकड़ते नहीं थे। अगर वो उसे पकड़ लेते थे और बांध देते थे, इसका मतलब वो किंग की किंगशिप को नहीं मान रहे हैं, ओके। फिर उन दोनों के बीच में वॉर होती थी बच्चे। द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग्स रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ द सभा एंड समिति। जो किंग की जो पावर बढ़ती थी उससे जो सभा और समिति की पावर्स थी वो डिक्रीज हो रही थी, ओके। एंड देन देयर कम्स बच्चे सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशन सोसाइटी किस टाइप की थी, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज द फैमिली। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था वो हेड होता था बच्चे फैमिली का, ही वॉज नोन एज गृहपति। क्या कहते थे उसे, गृहपति। Women were held in great respect. लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। They were educated. वो पढ़ी लिखी थी। Not all women were educated, but women like Apala and Ghosha even composed hymns. उन्होंने मंत्रों को भी कंपोज किया था, जो अपाला एंड घोषा का नाम आता है। सारी की सारी विमेन तो नहीं थी पढ़ी लिखी बटे, बट कंडीशन वीमेन की उन दिनों बहुत अच्छी थी, ओके। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज असेंशियल इन द रिलीजियस सेरेमनीज। जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी बच्चे, उसमें वाइफ का होना बहुत ज़रूरी था। द सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई सती प्रथा नहीं थी, चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी बच्चे, अननोन थी ये चीज़ें। बट दे गेंड इम्पॉर्टेंस इन लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी,
बिकॉज द स्टेटस ऑफ द women डिक्लाइंड। लेडीज़ का जो स्टेटस था फीमेल मेंबर्स का वो डिक्लाइन हो गया था। ओके, देन देयर कम्स डू यू नो। डू यू नो में क्या है, जो प्रिंसेसेस होती थी दे वर अलाउड टू चूज़ देयर हस्बैंड्स बाय स्वयंवरा। जो राजकुमारियाँ थी उनको अपना हस्बैंड चुनने की परमिशन थी, और स्वयंवर होता था जिसमें कि वो अपने हस्बैंड को चुनती थी। जैसे कि सीता माता का स्वयंवर हुआ था, उन्होंने भगवान राम जी को चुना था। ओके, एंड द चंडाल्स वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटेड और टचेबल्स। जो चांडाल्स थे जो डेड बॉडीज़ को जलाते थे बच्चे, दीज वर नोन एज चंडाल्स, एज दीज पीपल परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रीमेशंस। जो डेड बॉडी का क्रीमेशन करते थे, अंतिम संस्कार करते थे बच्चे, तो उन्हें पॉल्यूटेड और अनटचेबल्स माना जाता था। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। उन्हें विलेज के बाहर रहना पड़ता था। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स। टूटे फूटे बर्तन होते थे जिन्हें सबने फेंक दिया होता था, उसको यूज़ करते थे वो। वोर आयरन ऑर्नामेंट्स। आयरन से बने ऑर्नामेंट्स पहनते थे। एंड क्लोथ्स ऑफ डेड पीपल। मरे हुए लोगों के वो कपड़े पहनते थे। So children, the society was divided into 4 varnas. Varnas means caste, namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Brahmins looked after the religious matters. जो भी धार्मिक मैटर होते थे, धार्मिक काम होते थे, उनको कौन देखते थे बच्चे? ब्राह्मण्स। एंड क्षत्रियास प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म। द वैश्यस वर द कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन। जो वैश्यस थे वो ट्रेड पर्सन्स थे, बिजनेसमैन थे, और वो कल्टिवेशन भी करते थे। द शूद्रास वर द लेबरर्स हु सर्व द अबव 3 क्लासेस। और जो शूद्रास थे बच्चे वो इन 3 क्लासेस को, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यास की सेवा करते थे। ओके, सर्व द अबव 3 क्लासेस। द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्नास, डिफरेंट कास्ट के जो लोग थे, हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल। इकट्ठा होने की उन्हें पूरी फ्रीडम थी। मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशंस। वो अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज कर सकते थे। ओके, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड बच्चे, द वर्ना सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ये जो वर्ना सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया, बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था। उन दिनों में हेरिडिटरी बन गया था। ओके, नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और वर्ना। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बन गए थे। ओके, कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकता था। ओके, और उसकी कास्ट भी चेंज नहीं हो सकती थी। एक बार जो जिस घर में पैदा हो गया वो उसका वर्ना सिस्टम फिर चेंज नहीं हो सकता था। But there were many areas like northeast where social and economic differences were not very sharp. But northeast में कुछ areas थे बच्चे जहाँ पे सोशल और जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। ओके, और जो पुजारी लोग थे उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत कम था। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट्स was limited. द उपनिषद्स डिवाइडेड मैंस लाइफ इनटू 4 आश्रम्स। जो उपनिषद्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा उसमें बताया गया है कि मैन की जो लाइफ है वो 4 आश्रम्स में बटी हुई है, ऑफ 25 ईयर्स ईच। हर एक आश्रम का जो टाइम है वो कितना है? 25 ईयर्स का। अ मैन हैड टू स्पेंड द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज एज इन अ गुरुकुल। एक आदमी को अपने पहले 25 साल कहाँ पे स्पेंड करने चाहिए बच्चे? पढ़ाई में, गुरुकुल में। वेयर ही लर्न द आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। जहाँ पे वो क्या सीखता था? आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, की आगे की लाइफ को कैसे चलाना है, और अपने रिलीजन की के बारे में जो उसको नॉलेज होती थी वो कहाँ पर होती थी? गुरुकुल में। दिस स्टेज वॉज कॉल्ड ब्रह्मचार्य आश्रम। और इस स्टेज को क्या कहा जाता था बच्चे? ब्रह्मचार्य आश्रम। द सेकेंड स्टेज ऑफ 25 ईयर्स was called the Grihastha Ashram, when a man worked hard, got married and raised a family. Then children, third stage आती है बच्चे वानप्रस्थ आश्रम की, when man performed all his duties regarding his family। उन्हें बड़ा कर लेता है अपनी फैमिली को वो, और उन्हें सेटल डाउन कर लेता है। आफ्टर दैट वो वन की तरफ प्रस्थान करता है, मतलब मेडिटेशन के लिए। ओके, आराम कर सकता है, वो रिटायर हो जाता है अपने डेली रूटीन के वर्क से। ओके, इन द लास्ट स्टेज
which is called sannyas ashram. He lived a life of complete detachment and spent his time in preaching. जो संन्यास आश्रम रहता है एंड में लास्ट स्टेज में, वो एक कंप्लीट डिटैचमेंट मतलब सबसे अलग थलग होके जो अपना टाइम है वो किस में बिताता है, पूजा पाठ में, प्रीचिंग में। ओके, प्रभु की भक्ति में ही अपना सारा जो टाइम है उसे लगा देता है। ईश्वर की जो प्रीचिंग है, ईश्वर की भक्ति में ही वो सारा टाइम स्पेंड करता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इन social condition in Vedic civilization. So children, also that's all in today's topic. So revise your topic.